Hello everyone, मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this theory of computation course. As usual शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converter, right? ये मुझे कुछ लोगों ने सवाल पूछा है, सर why you start every session with TOC is all about language and corresponding converter? Because this particular sentence I want to take it to your subconscious mind. This is what the base and tagline of TOC, right? And पिछले सेशन में हम लोग थे finite automata with output. बहुत अमेजिंग दो मशीन्स देख रहे हैं, मूर मशीन एज वेल एज मिली मशीन्स. तो दोनों का फंडामेंटल ऑपरेशन इज सेम, मीन्स दोनों के दोनों डीएफए के जैसे ही काम करते हैं. सिर्फ दोनों में एक डिफरेंस है कि उनका आउटपुट देने का तरीका अलग अलग है. मूर सेज दैट मैं स्टेट के अंदर आउटपुट देगा, मिली सेज दैट मैं ट्रांजिशन लाइन के ऊपर आउटपुट देगा, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ द डिफरेंसेस. वी सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. आज के सेशन में और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एंड यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं नोन एज मिनिमाइजेशन ऑफ मिली मशीन, जो कि मूर के साथ पॉसिबल नहीं है, पर मिली के साथ मिनिमाइजेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, राइट? सो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मूव करते हैं, राइट? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जितने भी लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम दिखेगा यहाँ पे वो सारे डीएफए में हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, मोस्ट ऑफ देम, राइट? ओके, एंड देयर आर फ्यू एडिशनल थिंग्स which we'll be looking into this particular session, right? So design a Moore and Millie machine for following process, right? For input from 0 or 1 का all possibilities, मतलब input symbol आपको मिले हैं 0 and 1. If input ends with 101, output is x. 110 अगर input है तो output is y. Ends with 110, the output is y. Otherwise the output is z, right? Okay, so ends with वाला problem है. So what I'll do is just a minute, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं and I'll keep it here at the top, right? Okay, so when we read the problem statement, we could be able to see that we get two things directly from the problem statement. One is input alphabet, that is sigma, in this case is 0 and 1, right? Okay, output symbol भी यहाँ से मिलते हैं, that is capital X, capital Y and capital Z, right? And the problem is ending with, languages ends with 101 or 110, right? Okay, तो यहाँ पे लैंग्वेज बनेगा that is 101 and 110. These are the first two words of the language, and we know that while solving the DFA हम लोगों को पहले दो वर्ड्स का जरूरत है टू अप्लाई द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस, राइट? ओके, बेस फ्रेम बनेगा एंड बेस फ्रेम को फिर रिवाइज करेंगे. सो इस केस में भी 101 के लिए 110 के लिए बेस फ्रेम बनाते हैं एंड उसके ऊपर काम करते हैं, राइट? Now, as this problem is for ends with, we have seen like substring में it enjoys the self loop for all the possible inputs, but ends with में आप कभी फाइनल स्टेट में या एंड स्टेट में सेल्फ लूप एंजॉय नहीं करते हो, राइट? सो यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू गो फॉर बेस फ्रेम. यहाँ पे मेरा फोकस होगा मिली मशीन बनाने के ऊपर, बट मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा अगर आप मूर मशीन बना पाते हो तो उसका मिली कन्वर्जन इज द जॉब ऑफ फ्यू सेकंड्स. वो कौन सा एनालॉजी बताया पिछले सेशन में, तो वो इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट ये एंजॉय करेंगे एंड उस एनालॉजी से immediately Moore can be converted into milli machine. We know that, right? Okay, so let's go on developing the base frame for this. And base frame mein I'll be able to see something as, so base frame mein chalenge, this is my initial state, right? Okay, यहाँ पे 1 आता है तो I'll go with 2, one more state. यहाँ पे 0 आता है तो I'll go to one more state, and यहाँ पे 1 आता है तो I'll go with one more. This path is 101 के लिए ends with 101 and already 1 is there. Next is I'll go with this thing as 1 1 and what 0.
and this will be my state, right? Okay, let's give the name to the states, and here I'll go with Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5, right? Okay. हाँ, according to DFA designing हम लोगों को 90% सोचना है यहाँ पे DFA डिजाइन करने का and फिर आउटपुट को अटैच करना है, right? Okay. So in this case, I'll have my Q0. Q0 is a start state and can see 0. Why? जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक बाहर नहीं निकलेंगे, right? Okay. Q1 can see 1, right? Q2 can see 1 0. Q3 can see 1 0 1. Q4 can see 1 1. And last wala Q5 can see 1 1 0. So we know this. Let us give the completeness to the DFA. एक स्टेट कंप्लीट है, दैट इज Q1. बाकी 5 स्टेट्स का आप लोगों को DFA कंप्लीटनेस देना है. चलो जंप करते हैं Q0 में. तो मोमेंट आई जंप इन Q0, उसने मुझे कुछ नहीं दिया बिकॉज इट्स इनिशियल स्टेट. 0 में कम, 1 में कम. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? यस. एंड 0 देखने वाला स्टेट Q0 है. सो उसके लिए 0 के लिए यहाँ पे करेंगे, राइट? 1 का ऑलरेडी एरो इज देयर. लेट्स मूव इनटू Q1. Q1 में जैसे ही चले उसने आपको 1 दे दिया, राइट? ओके. 0 में कम, 1 में कम. सो इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? यस, Q2 एंड एरो इज देयर, राइट? सो इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 1? यस, 1 1, राइट? तो ये ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है. Q1 का DFA कंप्लीटनेस अपने पास है. लेट्स गो इनटू Q2. Q2 says मेरे पास 1 0 है, 1 0 है. 0 में कम, 1 में कम. Is there any state which can see 1 0 1? Yes. Q3 is there. You don't have to see the transition, right? 1 0 0 देखने वाला कोई स्टेट नहीं है यहाँ पे. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल. 0 0 देखने वाला स्टेट नहीं है. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल. सिंगल 0 देखने वाला स्टेट है Q0. सो Q2 में जब 0 आएगा तो यू विल बी लैंडिंग इनटू व्हाट? Q0, राइट? ये हुआ इसका ट्रांजिशन. लेट्स मूव इनटू Q3. Q3 में जब चलेंगे तो वो कह रहा है मेरे पास 1 0 1 है आपको देने के लिए, एंड 0 में कम, 1 में कम. 4 इनपुट देखने वाला कोई भी स्टेट नहीं है. सो कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल. 0 1 0 नो स्टेट. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल. 1 0 देखने वाला स्टेट कौन सा है? Q2. सो Q3 में जब 0 आएगा तो यू विल बी मूविंग इनटू व्हाट? Q2, राइट? ओके. नेक्स्ट टू दैट 1 0 1 1 देखने वाला स्टेट इज नॉट देयर. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल. 0 1 1 नो. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल. 1 1 देखने वाला स्टेट है क्या? यस, Q4. सो यहाँ का 1 विल बी टेकन इनटू दिस. ये क्लियरेंस? ओके. अभी 2 स्टेप बचे हैं, दैट इज Q4. Q4 कह रहा है मेरे पास 1 1 है. 0 में कम, 1 में कम. इसका ट्रांजिशन इज ऑलरेडी ड्रॉन. 1 1 देखने वाला स्टेट नहीं है. कट द लेफ्टमोस्ट. 1 1 देखने वाला स्टेट है क्या? यस, दैट इज व्हाट? Q4 itself. सो यहाँ पे 1 लिखा. एंड लास्ट वन इज Q5. Q5 कह रहा है मेरे पास 1 1 0 है, 1 1 0 है. 0 में कम, 1 में कम. Is there any state which can see 1 1 0 0? No. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see 1 0 0? No. Cut the leftmost symbol. 0 0 no. Cut the leftmost symbol. Single 0, yes. And that is what? Q0. So Q5 में जब 0 आएगा तो आपको चलना है कहाँ पे? Q0, राइट? ओके. अगर टेक्निक बताना है ये होगा तो ये जरूर होगा. That is what I am trying to convince you since DFA designing, right? तो ये टेक्निक पे डाउट मत रखना because these are 100% fruitful techniques, right? Though you will find that sir ये तो बुक में दिए नहीं है. I'll always say that ये DFA डिजाइनिंग के सबसे परफेक्ट एंड फ्रूटफुल टेक्निक्स है, राइट? ओके. विद माय एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग विद TOC, I'll find this as most fruitful and perfect technique, right? Okay. 1 1 0 1 देखने वाला स्टेट है क्या? नहीं. कट द लेफ्ट मोस्ट. 1 0 1 देखने वाला स्टेट है क्या? यस. Q3 इज 1 0 1 देखने वाला स्टेट. तो इसका 1 यहाँ पे मुझे लेके जाएगा. यस, दैट्स इट, right? Okay. So this is how the DFA completeness is given to this. अभी हमको करना है इसका मूर. तो मूर बनाना है तो पहले आउटपुट अटैच करना पड़ेगा. x कब चाहिए? 1 0 1 है तो 1 0 1 के लिए आउटपुट अपने को x है, राइट? ओके. 1 1 0 के लिए आउटपुट y है. सो आउटपुट इज y. फॉर ऑल रेस्ट ऑफ द केसेस
the output is Z. So सारे के सारे बाकी स्टेट के लिए output is Z, this is output is Z, this is output is Z, यहाँ पे output is Z, right? Okay. So यहाँ पे output X है अपने पास and यहाँ पे output Y है. For rest of the all things, I have the output as what? Z. So अभी इसका मिली कन्वर्ट करना है, राइट? एंड मिली कन्वर्ट करके फिर मिनिमाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे समझाने वाला हूँ. सो ध्यान से देखना है कि कैसे है. मिली कन्वर्जन के लिए एनालॉजी बताया, व्हाट इज इट? इस ट्रेन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट जेड एंजॉय करेंगे. तो इस स्टेशन पे आने वाले 3 यात्री है, उनके लिए आउटपुट रख दिया जेड, राइट? ओके. एंड यहां से ये आउटपुट को हटा रहा हूं, ये आउटपुट को हटा दिया. इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे जेड, राइट? ओके. सो यहाँ पे एक यात्री आ रहा है तो वो भी जेड आउटपुट एंजॉय करेगा एंड यहाँ पे ये हटा दिया, राइट? Q2 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे जेड. Q2 पे कितने रोज आ रहे हैं, कितने यात्री आ रहे हैं? सो 1 एंड 2. सो इनके लिए आउटपुट इज जेड, इसके लिए आउटपुट इज जेड, राइट? ओके. Q3 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट X एंजॉय करेंगे. कितने लोग आ रहे हैं Q3 में? ये एंड दिस, राइट? सो आउटपुट इज X एंड आउटपुट इज X. इन दोनों के ये आउटपुट फ्रॉम द स्टेट हटा रहा हूं, ट्रांजिशन पे दे दिया, राइट? ओके. एंड नाउ Q4 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे Z. सो Q4 पे आने वाला ये I'll go with this Z, this is Z, this is Z, right? Okay. So 3 यात्री, so Z and फिर यहाँ से इस Z को निकाल देंगे, right? Okay. And last one is Q5 पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे Y. So यहाँ पे आ रहा है Y and then I'll go with removal of this, right? Okay. So now this I get as a milli machine, right? Okay. अभी जब भी मिली मशीन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मिली मशीन में एक हमेशा पॉसिबिलिटी रहता है कि मिली मशीन को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बट मूर मशीन को ऑप्टिमाइज करना मतलब स्टेट को जोड़ना पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि मूर मशीन स्टेट के अंदर आपको आउटपुट देता है. सो जब आप 2 स्टेट को एक साथ जोड़ दोगे, ऑप्टिमाइज करने के लिए उनको कंबाइन कर दोगे, तो आप उनके आउटपुट का स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? So milli machine provides you one more advantage over Moore machine, and that is you can always go on optimization of milli machine by reducing the states in it. तो वो प्रोसेस कैसे है प्लीज देखो, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड उसके बाद फिर मिनिमाइज मशीन का भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई नीड सम स्पेस, सो थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते हैं. I'll go here on this. I'll reduce this, right? Okay, इस साइड में थोड़ा सा इसको लेता हूं so that things will be, I'll get some space for, right? And जो भी ऑपरेशंस आप करोगे, जो भी ऑपरेशंस आप करोगे वो आपको टेबल पे करने हैं, टेबल पे, राइट? ओके. सो ये जो मिली मशीन ड्रॉ किया है इसका टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड उसके ऊपर मिनिमाइजेशन में अप्लाई करने वाला हूँ, राइट? ओके. सो प्लीज सी. ओके. एंड ये कैलकुलेशंस भी इस साइड में लेता हूँ, राइट? ओके. सो दैट you could be able to see this. Okay, चलो मिली मशीन का टेबल ड्रॉ करते हैं. So what is the tabular representation मिली मशीन में? कैसे? देखो ये होगा नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट स्टेट में इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट है, इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट है, राइट? ओके. एंड इनपुट सिंबल इज 0 एंड 1, राइट? ओके. एंड अपना स्टेट है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. So there are so many state into this, right? Okay. 6 state का डायग्राम है. Now let us see how the things works. Q0 में जब 0 आएगा, Q0 on 0 goes to Q0, आउटपुट एंजॉय कर रहा है Z. Q0 on 1 goes to Q1,
आउटपुट एंजॉय कर रहा है z. Q1 on 0 goes to Q2, output is z. Q1 on 1 goes to Q4, output is z. Right? Okay. हाँ, अभी Q2. Q2 on 0 goes to Q0, output is z. Q2 on 1 goes to Q3, output is x. Right? Okay. Now Q3. Q3 on 0 goes to Q2, output is z. Q3 on 1, Q3 on 1 goes to Q4, output is z. Q4 on 0, Q4 on 0 goes to Q5, output is y. And Q4 on 1, Q4 on 1 goes to itself and output is z. Last one, Q5. Q5 on 0 goes to Q0 with output is z, and on 1 it goes to Q3 with the output as x. तो ये अपना टेबल बना, राइट? ओके, यहां तक का सॉल्यूशन तो यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली नाउ, आई गेस, राइट? ओके, आई होप कि ये सारी चीजें आपको 100% क्रिस्टल क्लियर है. अभी हम लोगों को चलना है कि इस मिली मशीन का मिनिमाइजेशन कैसे होगा. सो आपको स्टेट टेबल में देखना है एंड ऐसे स्टेट को ढूंढना है जिसके लिए स्टेट ट्रांजिशन एज वेल एज आउटपुट दोनों भी कॉम्बिनेशन सेम है, राइट? ओके, तो देखो Q0 आउटपुट Z0 दे रहा है, सो आउटपुट Z0 देने वाले Q1 है, Q2 है, राइट? ओके, दोनों Q1 एंड Q3 है जो कि आउटपुट Z0 दे रहे हैं. यहां पे मैं दिखा रहा हूं, राइट? बट द थिंग इज लाइक इफ यू ऑब्जर्व देयर ट्रांजिशंस, ये Q0 Q1 है, ये Q2 Q4 है एंड ये Q2 Q4 है, तो ये अलग अलग है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर मैं देख रहा हूं Q1 एंड Q3 को, Q1 and Q3 को, right? Are they having the same transitions? Yes, Q2 Q4 and Q2 Q4. तो हम लोग इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों को ऑप्टिमाइज स्टेट में, मतलब एक स्टेट में कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट? ओके, सो ये हुआ अपना पहला ऑब्जर्वेशन. दूसरा ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसा स्टेट है क्या जिसके आउटपुट भी सेम है एज वेल एज इनपुट ट्रांजिशंस भी सेम है, राइट? ओके, ध्यान से देखते हैं. सो प्लीज ऑब्जर्व Q2 and Q5, राइट? ओके, Q0 Q3, Q0 Q3, ZX ZX, राइट? ओके, तो ये दोनों भी स्टेट अपने लिए क्या दे रहे हैं? सेम ट्रांजिशंस एज वेल एज सेम आउटपुट, राइट? ओके, तो अभी हम लोग इनको मर्ज कर सकते हैं, राइट? ओके, एंड मर्जिंग के अगेंस्ट में टेबल लिखने जा रहा हूं. प्लीज सी नाउ, आई नीड योर वेरी एक्स्ट्रा अटेंशन टुवर्ड्स दिस, राइट? अभी मर्जिंग में Q1 एंड Q3 की जगह पे एक ही स्टेट लिखेंगे, दैट इज लेट अस से Q1. Q3 में नहीं लिखने वाला. एंड Q2 एंड Q5 में से एक ही स्टेट लिखेंगे, लेट अस से Q2. Q5 में नहीं लिखने वाला. बट नाउ, हाँ, यहां पे तो एक स्टेप प्लीज ऑब्जर्व, Q0 Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, Q3 लिख दिया, एंड देन आई विल गो विथ व्हाट? Q4, राइट? ओके, सो नाउ Q1 एंड Q3 को तो मुझे नहीं लिखना था, राइट? ओके, सो Q1 एंड Q3 से एक आ गया Q1, Q2 एंड Q5 में से एक आ गया Q2, बचा हुआ स्टेट इज व्हाट? Q4, राइट? ओके, अभी उसका टेबल यहाँ पे मुझे एज इट इज लिखना है, पर आपने Q1 एंड किसको मर्ज किया? Q3 को. Q1 एंड Q3 को मर्ज किया एंड यहाँ पे Q2 एंड Q5 को मर्ज करने की सोच रहे हैं, राइट? ओके, तो जहां जहां पे टेबल में Q3 है वहां पे सिर्फ Q1 होगा, बाकी चेंजेस नहीं होंगे. आउटपुट को आपको टच नहीं करना है, आउटपुट को आपको चेंज नहीं करना है, बिकॉज हम लोग मर्जिंग किसका कर रहे हैं? हम लोग मर्जिंग स्टेट का कर रहे हैं. We are not merging their output behavior, right? We are merging their state behavior, right? So जहां जहां पे Q3 है वहां पे Q1 लिखा जाएगा, जहां जहां पे Q5 है वहां पे Q2 लिखा जाएगा. That is the only thing that you supposed to add in minimize table, right? Okay, चलो, Q0 on 0 goes to Q0, output is Z, Q1 output is Z. ये तो मैंने लिख दिया. अभी Q1 on 0 goes to Q2,
output is Z, goes to Q4, output is Z, right? Okay. Q2 को लिखना है, Q2 on 0 goes to Q0, output is Z, on 1 goes to Q3, right? Okay. So Q3 की जगह पे आपको लिखना है Q1, right? And Q1 and output is X. आउटपुट को आपको चेंज नहीं करना है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि हम लोग मर्जिंग स्टेट का कर रहे हैं, आउटपुट का नहीं, राइट? ओके. Q4 on 0, Q4 on 0 goes to Q5, Q5 की जगह पे लिखना है Q2, right? Okay, and output is Y, and Q4 on 1 goes to Q4, output is Z. And फिर मिनिमाइज्ड बनेगा, and इसका मिनिमाइज्ड डायग्राम यहां पे मैं ड्रॉ करने वाला हूं. So this gives me Q0, right? Okay. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ Q1, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ लेट अस से Q2, एंड यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ लेट अस से Q4, right? Okay. So please see now. Q0 on 0 goes to itself, output is Z. On 1 it goes to Q1, output is Z, right? Okay. Q1 on 0 goes to Q2. On 0 goes to Q2, output is Z, right? Q1 on 1 goes to Q4. 1 goes to Q4, output is Z. Q2 on 0. Q2 on 0 goes to Q0. Goes to Q0, output is Z. Q2 on 1 goes to Q1. On 1 goes to Q1, output is X. Q4 on 0 goes to Q2. And output is Y, right? Okay. And Q4 on 1 goes to Q4. And output is Z. राइट? ओके. अभी चेक करते हैं ये जो बना हुआ मिनिमाइज्ड फाइनाइट ऑटोमाटा है, मिनिमाइज मिली मशीन जो है, वो अपने को आउटपुट दे रहा है या नहीं. चेक करते हैं हम लोग 101 के लिए. 101 के लिए एंड में आउटपुट आना चाहिए x. सो प्लीज सी 101 आउटपुट मिल रहा है x. 110 के लिए आउटपुट मिलना चाहिए y. प्लीज सी 110 आउटपुट इज y. फिर से दिखा रहा हूं 10101 एंडिंग विथ 101 आउटपुट आना चाहिए x. सो 10 राइट 101 आउटपुट आ रहा है एंड में x. 111110 110 तो आउटपुट आना चाहिए y, राइट? ओके. सो प्लीज सी 1 1 then 1 1 one more 1 and next is 0. The output given is y. तो यहाँ पे ये जो है that is what minimized मिली मशीन. आप सिर्फ मिनिमाइजेशन मिली का कर सकते हो, मूर का नहीं. मूर के स्टेट को कंबाइन करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मूर सेज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द आउटपुट इनसाइड द स्टेट. सो स्टेट के अंदर आउटपुट भी है तो आप उसको मर्ज नहीं कर सकते, राइट? ओके. सो मिनिमाइजेशन हमेशा होगा व्हाट मिली मशीन का, राइट? तो पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में मिनिमाइजेशन पॉसिबल है क्या देखते हैं, राइट? ये प्रॉब्लम हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट का देखा है, राइट? इसमें मिनिमाइजेशन पॉसिबल है क्या चेक करते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज थोड़ा सा ये डायग्राम को मैं, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा भी था नहीं क्या कि मिनिमाइजेशन इसका हो सकता है, तो आई विल शो यू लेटर ऑन, राइट? ओके. इस डायग्राम को थोड़ा इस साइड में ले रहा हूं so that I could be able to utilize this space, right? Okay. अभी यहाँ पे मिनिमाइजेशन के टेक्निक में हमने देखा हर स्टेट का आउटपुट एंड इनपुट ट्रांजिशन अगर सेम है, स्टेट ट्रांजिशन एंड मशीन फंक्शन सेम है, तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो. देखो Q1 Q2 10, Q1 Q2 10, Q1 Q2 10, तो ये तीनों स्टेट मर्ज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका मर्जिंग हो सकता है किसके लिए, दिस इज Q0 Q1 एज वेल एज Q2, तीनों भी मर्ज हो सकता है. सो हम लोग सिर्फ एक स्टेट रख सकते हैं, दैट इज व्हाट Q0. एंड फिर इसका टेबल कैसे बनेगा, प्लीज सी 0 के लिए एंड 1 के लिए Q0 on 0. हाँ, जहां जहां पे Q1 Q2 है वहां वहां पे लिखेंगे व्हाट Q0 ओनली, राइट? ओके. सो Q0 and output is 1 and Q0 on 1 goes to Q0 with the output as 0. Finish. This is minimized table, right? Okay. And इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आई एम इन Q0. अगर यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है तो आउटपुट 1,
यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, तो आउटपुट इज 0. प्लीज ऑब्जर्व. राइट, ओके. सो Q0 मिली मशीन का दिस इज द ब्यूटी दैट यू कैन मिनिमाइज दिस. एंड अभी देखो, एक ही स्टेट की तरफ आप अलग अलग आउटपुट को लेके पहुंच रहे हो, राइट. अगर 0 मिला तो उसी स्टेट में जा रहा हूं, पर वहां पे ट्रांजिशन में आउटपुट 1 मिल रहा है. 1 मिला तो उसी स्टेट में जा रहा हूं, वहां पे ट्रांजिशन में क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. ब्यूटी ऑफ दिस, बिकॉज हम लोगों ने तीनों स्टेट का कॉम्बिनेशन कर दिया, मर्जिंग कर दिया, एंड वी गेट द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वन स्टेट ओनली. ये पॉसिबल नहीं मूर के साथ, राइट. ओके, so this is all about minimization of millimation, right? Okay. अगले कुछ प्रॉब्लम्स में चलेंगे. Let's try to see few more problems of Moore and Milli. Okay. So this is again a very genuine and interesting problem, right? ये प्रॉब्लम बहुत बार पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है, so ध्यान से रीड करना है. Design a Moore machine that will read sequence made up of A, E, I, O, U. Moore machine बनाना है, आप उसको मिली भी कह सकते हो, मिली भी बना सकते हो, right? Okay. And gives as output same character except that when I is followed by E. I के बाद अगर E चला है, इनपुट में I के बाद अगर E आता है, तो it will produce the output to 0. राइट, ओके. बहुत इंटरेस्टिंग है. वैसे देखा जाए प्रॉब्लम तो यू मे फील दैट दिस इज डिफिकल्ट, बट द थिंग इज लाइक इनपुट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं. लेट अस सी अप्लाई वन बाय वन टेक्निक्स. सो इनपुट कॉम्बिनेशन इज गिवन, दैट इज सिग्मा इन दिस केस इज ए ई सॉरी sigma is A E I O U, right? Okay. And output characters भी same है. कैसे? A E I O and what? U, right? Okay. A E I O U. So जब वही कैरेक्टर मिलेगा इनपुट तो वो सेम आएंगे. सिर्फ एक एक्सेप्शन इसमें रखा है, दैट इज व्हेन I के बाद आने वाला E will produce what? The output to what? 0. Sorry, output to what? O. I के बाद आने वाला E will give you output as O, right? Okay. अभी इसको डिजाइन कैसे करना है? अगर इसका DFA डिजाइनिंग करते हैं तो हम लोग सोचना पड़ेगा कि इसमें वर्ड क्या क्या आ सकता है. सो हर पॉसिबल सिंबॉलिक नोटेशंस यहाँ पे आ सकता है, राइट. ओके. सो मुझे एक स्टेट चाहिए कि जो ए को देखे, मुझे एक स्टेट चाहिए जो ई को देखे. ऐसे हम लोग स्टेट्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. ओके. सो प्लीज सी हाउ आई कैन गो विद दिस solution, right? So I'll go with the state as Q0, right? That will be my start state, right? Okay. And then I'll say QA can see A, right? QE can see E, QI can see I, AEIO QO can see O, right? Okay. हाँ, इसको ये Q0 एंड QO को अवॉइड करने के लिए व्हाट आई विल डू इज इस स्टेट को चेंज करके मैं QS लिख रहा हूं, start state, right? Okay. So QO can see O and QU can see U, right? Okay. तो अभी देखो यहां पे बेस फ्रेम कैसे बनेगा. सो दिस इज माय QS. QS में अगर A मिलता है तो मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है कि जहां पे मुझे द स्टेट विच कैन सी A, राइट. ओके. सो A E, यहाँ पे अगर E मिलता है तो मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि मुझे E दे रहा है, राइट. AE, देन आई हैव AEIOU, राइट. ओके. इसको थोड़ा सा इस साइड में लेते हैं सो दैट वी कैन अकोमोडेट द डायग्राम वेरी इजीली, राइट. ओके. एंड फिर इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सो AEIO एंड U, राइट. QI QO एंड QU, राइट. ओके. सो E मिला तो QE की तरफ, I मिला तो QI की तरफ, O मिला तो QO की तरफ एंड U मिला तो QU की तरफ,
राइट ओके। ये हुआ अपना पहला स्टेट के 5 एरोस। ऐसे अगर 6 स्टेट के 5 एरोस ड्रॉ करेंगे आप, तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, राइट ओके। तो आंसर शीट में भी आप कैसा सॉल्यूशन लिख सकते हो, ये यहाँ पे ध्यान से देखना है। आपने तो ये ट्रांजिशन दिखा दिए, स्टेट के मीनिंग लिख दिए, तो यू आर परफेक्ट अप टिल दिस, राइट ओके। अभी यहाँ पे एज इट इज अ मूर मशीन, हम लोग इनिशियल स्टेट का आउटपुट को इप्सिलॉन मान के चलते हैं। जब क्यू ए में आएंगे आउटपुट ए, ई में आएंगे आउटपुट ई, आई में आएंगे आउटपुट आई, ओ में आएंगे आउटपुट ओ, एंड यू में आएंगे तो आउटपुट यू। ऐसे ही होगा, राइट ओके। नाउ द थिंग इज लाइक, ये तो आपने दिखा दिया, पर कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट इज आउटपुट सेम कैरेक्टर एक्सेप्ट दैट व्हेन आई इज, मतलब आपको आई मिल चुका है, उसके बाद आने वाला ई आपको ई आउटपुट नहीं देगा, उसके बाद आने वाला ई आपको ओ आउटपुट देगा, राइट ओके। सो अगर आप आई में हो, मतलब आपने आउटपुट देख चुका है, इनपुट सिंबल इज आई एंड आउटपुट भी उस टाइम पे आए हैं, राइट ओके। सो यहाँ पे देखो, वहां पे अगर ए मिलता है तो यू विल बी ट्रांजिटिंग टू दिस, राइट। अगर ई मिलता है तो इंस्टेड ऑफ आई के बाद आने वाला ई यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि आई के बाद आने वाला ई, यू शुड नॉट गो टू द स्टेट विच कैन सी ई, बट यू शुड गो टू द स्टेट विच विल गिव यू द आउटपुट एज व्हाट, ओ, राइट। तो ये ट्रांजिशन यहाँ पे आपको दिखाना है विद समवॉट डिफरेंट कलर नोटेशंस, राइट ओके। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे इसको, आई के बाद आने वाला ई विल गो इनटू व्हाट, ऐसा स्टेट जो कि आउटपुट दे रहा है व्हाट, ओ। दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंट थिंग, आप इसको मार्क कर सकते हो स्टार से, क्योंकि दिस इज द ट्रांजिशन इन विच एग्जामिनर इज मोर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, राइट ओके। देन आई के बाद आने वाला ई इज मेंशन, आई के बाद आने वाला आई विल स्टे इन टू दिस, आई के बाद आने वाला ओ विल गो टू ओ, एंड आई के बाद आने वाला यू विल गो टू यू, राइट ओके। सो सिर्फ एक ट्रांजिशन में यहाँ पे चेंजेस है, एंड प्लीज सी इसके लिए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा यहाँ पे टेबल के लिए जगह दे बना लेता हूँ। So please see how I should go with the table, right? Okay. So यहाँ पे मूर का टेबल है, A E I O U and this is output, right? Okay. हम लोगों ने QS के लिए आउटपुट तो कुछ कंसिडर नहीं किया, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी एज मूर मशीन में इनिशियल स्टेट में मिलने वाला आउटपुट वी कैन इग्नोर, बिकॉज Moore is responding to what? Epsilon in its initial state, right? Okay. So next is QA, QE, QI, QO and QU, right? Okay. यहाँ पे देखो, ये QA में जाएगा, QE में जाएगा, QI में जाएगा, QO में जाएगा, QU में जाएगा, right? Okay. QA भी सेम थिंग, आपको ये सेम ट्रांजिशंस रखने हैं, क्योंकि इनके लिए वो आउटपुट सेम दे रहा है, राइट। क्यू ए गिव्स यू आउटपुट ए, ई गिव्स यू आउटपुट ई, आई गिव्स यू आउटपुट आई, ओ गिव्स यू आउटपुट ओ एंड यू गिव्स यू आउटपुट यू, राइट ओके। तो क्यू ई के लिए भी ट्रांजिशन सेम रहेंगे, राइट ओके। आई के लिए, आई में आने वाला ई, यहां पे आपको आई के बाद आने वाला ई, दिस विल टेक यू टू क्यू ए, this will take you to QO, and ये सबसे important transition रहेगा, right? QO, right? And then this will go to QI, this will go to QO, this will go to QU, right? Okay, and this is QA, QE, QI, QO and QU. Rest of the transitions will remain same, right? डायग्राम के बाद भी आप दिखा सकते हो, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड ट्रांजिशन, एंड यहाँ पे लिख सकते हो रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशंस can be shown similarly shown in diagram,
rest of the transition can also be shown similarly in the diagram. and ये टेबल है, इस टेबल में भी आपको इसको हाईलाइट करना है। I के बाद आने वाला E will take you to ऐसा स्टेट जो स्टेट आपको आउटपुट दे रहा है O, right? When I is followed by E, it will produce the output as O. That's it, right? Okay. तो ये जो है यहाँ पे इतने बड़े प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे 30 एरोस ड्रॉ करना नॉट पॉसिबल, अदरवाइज यू योरसेल्फ विल गेट कंफ्यूज्ड एज वेल एज एग्जामिनर विल आल्सो लुकिंग इनटू सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड ट्रांजिशन। सो हमने एक स्टेट का ट्रांजिशन परफेक्टली ड्रॉ कर दिया, फिर आई के ऊपर जो कंस्टेंट है आई के बाद आने वाला ई उसका आप ड्रॉ कर दो ट्रांजिशन एंड शो इट डिस्टिंक्टली, मतलब डिस्टिंग्विश करना है उसको, एरो से करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, अदर कलर पेन से ड्रॉ करो, रेड एंड ग्रीन को यूज नहीं करना है, बाकी कलर यू कैन यूज एंड यू कैन ड्रॉ दिस थिंग। बट टेबल आपको पूरा का पूरा लिखना है एंड वहां पे भी इसको डिस्टिंग्विश करो। क्यू आई में आने वाला ई, आई के बाद आने वाला ई विल टेक यू टू ऐसा स्टेट जो कि आपको आउटपुट दे रहा है ओ, राइट? ओके, दिस इज हाउ दिस थिंग कैन बी डेवलप, right? Okay, so this is what a Moore machine for this particular design. Let's move into one more problem. अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोगों ने डीएफए में नहीं देखा। डीएफए में रिप्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने नहीं देखा, पर यहाँ पे डिजाइन अ मूर मशीन टू रिप्लेस 000 बाय 001। सो ये प्रॉब्लम आता है डोमेन में जिसको हम लोग कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस प्रॉब्लम। फाइंड एंड रिप्लेस, कहां पे ये फैसिलिटी रहता है फाइंड एंड रिप्लेस? आप अगर हर एडिटर को यूज करते हो तो एडिटर में एक फैसिलिटी रहता है कि यू कैन फाइंड समथिंग एंड यू कैन रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वी कैन यूज मूर एज वेल एज मिली मशीन। बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। तो फाइंड क्या करना है, 000 का मतलब कंसेक्यूटिव 3 जीरोस को मुझे फाइंड आउट करना है एंड आने वाले तीसरे जीरोस की जगह पे रिप्लेसमेंट होगा 1, राइट? ओके, सो मुझे ढूंढना क्या है उसके ऊपर अपना फोकस रहेगा। 3 जीरोस का कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे इनपुट सिंबल्स सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड 1, आउटपुट सिंबल भी अपने पास 0 एंड 1 है एंड सोचते हैं ढूंढना क्या है। सो सर्च फॉर 000 कंसेक्यूटिव 3 जीरो। मुझे सिर्फ 3 जीरो को नहीं ढूंढना है, मुझे एक के बाद आने वाले एक ऐसे 3 जीरोस को कंसेक्यूटिव 3 जीरोस को ढूंढना है। तो इसके लिए बेस फ्रेम कैसे बनेगा प्लीज सी, राइट? ओके, मैं Q0 में हूं, आई एम इन Q0, राइट? एक जीरो आया तो मैंने देख लिया कि मेरे पास अभी एक जीरो है, दूसरा जीरो आया तो इट्स अ कंसेक्यूटिव सेकंड जीरो एंड तीसरा जीरो आता है तो यहां पे मैं सोचूंगा कि मेरे पास 3 जीरो आ चुके हैं, राइट? ओके, सो Q0, Q1, Q2 एंड Q3। चलो मीनिंग अटैच करते हैं। सो Q0 इज माय स्टार्ट सेट, राइट? Q1 कैन सी फर्स्ट जीरो, राइट? ओके, Q2 कैन सी सेकंड जीरो, कंसेक्यूटिव चाहिए, एंड Q3 कैन सी थर्ड जीरो, थर्ड कंसेक्यूटिव जीरो। ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, राइट? ओके, जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसको और मीनिंग देते हैं कैन सी 1, राइट? अभी ध्यान से इस डीएफए को देखना है आपको कैसे ये डिजाइन होगा, राइट? Q0 में अगर 1 आता है तो आई मीन Q0, 0 कैन कम, 1 कैन कम, 0 आएगा तो मैं पहला 0 देख के Q1 में निकलूंगा, 1 आया तो I'll stay in what? Q1, Q0 only, right? Okay. Now next is Q1 में, Q1 पहला 0 देख चुका है, वो एक 0 देख चुका है, एक 0 देख चुका है, उसके पास अगर दूसरा 0 आता है तो ये Q2 पे जाता है एंड उसके बाद अगर 1 आया तो अभी गिनो इतने जीरोस कितने हैं। सो इसमें अभी कंसेक्यूटिव 0 नहीं आया, राइट? ओके, तो मुझे कैन आई से लाइक, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहता हूं, राइट? ओके, देखो, हाँ एक 0, हाँ अगेन 1 आया, कंसेक्यूटिव नहीं मिला तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस बिकम 0 ओनली, फिर से एक 0, 2 0,
और एक 1 आया तो नंबर ऑफ जीरो बिकम 0, एक 0 2 0, नंबर ऑफ जीरो बिकम 0, एक 0 सॉरी 1 1, एक 0 2 0 एंड 3 0, ऐसे। तो आने वाला कंसेक्यूटिव अगर नहीं है 0 तो मेरा नंबर ऑफ जीरो का काउंट बनेगा 0, नंबर ऑफ जीरो का काउंट बनेगा 0। एंड जैसे ही मुझे 1 मिलता है सो आई विल बी हेडिंग बैक टुवर्ड्स व्हाट Q0। सो Q0 को और एक हम लोग मीनिंग अटैच कर सकते हैं, कैन सी 0 zeros एज वेल एज कैन सी 1। तो यहाँ पे बीच में आने वाले सारे 1 आपके नंबर ऑफ जीरो के काउंट को 0 बनाएंगे। सो आपको चलना है वापस किस पे, Q0 के ऊपर, राइट। ओके, प्लीज सी। एंड यहाँ पे अगेन सारे के सारे ट्रांजिशन किसके, 1 के ट्रांजिशन, सॉरी ये 0 लिख दिया मैंने, 1 के ट्रांजिशन विल टेक यू टू दिस, राइट। ओके, सो कंसेक्यूटिव 3 0 आए तो ठीक, उसके बाद आने वाला 1 विल टेक यू टू दिस एज वेल एज उसके बाद आने वाला 0 विल बी द फर्स्ट 0, सो विल बी द फर्स्ट 0। सो आप वो 0 यहाँ पे ड्रॉ करोगे क्योंकि ये स्टेप है, ये स्टेट है जो कि पहला 0 आपके लिए देख रहा है, राइट। ओके, तो अभी ये बना अपना कंप्लीट डीएफ है। अभी अटैच करने हैं आउटपुट, राइट। ओके, अगर मुझे थर्ड 0 दिखता है तो वहां पे मुझे 0 को रिप्लेस करना है, आउटपुट इज 1। पहले वाले सारे 0 तो आउटपुट 0 एंड आउटपुट 0 एंड यहाँ पे आउटपुट इज 1, राइट। ओके, सो इन दिस केस प्लीज सी नाउ, यहाँ पे आउटपुट अटैच कर रहा हूं 1, यहाँ पे आउटपुट अटैच कर रहा हूं व्हाट 0 एज 0, रिप्लेस दिस 0 एज 0 बट रिप्लेस द थर्ड 0 विथ व्हाट 1। सो देखते हैं हम लोग ये कैसे वर्कआउट होता है, इज इट वर्किंग फॉर अस और नॉट, राइट। ओके, सो चेक करते हैं। सो सपोज 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1, राइट। ओके, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। सो लेट्स गो ऑन वर्किंग। 1 मिला, आउटपुट इज 1, पहला 0 मिला, आउटपुट इज 0, दूसरा 0 मिला, आउटपुट इज 0, 1 मिला, 1 मिला तो यहाँ पे बैक, आउटपुट इज 1, फिर से एक 0 मिला, आउटपुट इज 0, फिर से 1 मिला, बैक टू Q0, आउटपुट इज 1, पहला 0 मिला, आउटपुट इज 0, दूसरा 0 मिला, आउटपुट इज 0, तीसरा 0 मिला, आउटपुट इज 1, नेक्स्ट 0 मिला, नेक्स्ट 0 मिला, आउटपुट इज व्हाट 0, नेक्स्ट 1 मिला, यहां से 1, नेक्स्ट 1 मिला, आउटपुट इज 1। सो यहाँ पे ये जो 3 0 का कॉम्बिनेशन था दैट विल गेट रिप्लेस्ड विथ व्हाट 0 0 1, राइट। तो किसके ऊपर फोकस है, काउंटिंग कंसेक्यूटिव 3 zeros के ऊपर फोकस है। सो 3 0 अगर मिलते हैं, थर्ड 0 शुड गेट रिप्लेस्ड विथ व्हाट 1 एंड दैट इज व्हाट दिस प्रॉब्लम इज, राइट। ओके, मूर मशीन ड्रॉ किया है, आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो मिली मशीन, तो मैं आपके ऊपर रख रहा हूं बिकॉज यहाँ पे वो एनालॉजी यूज करना है, इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट वो एंजॉय करेंगे, राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज। सो यहाँ पे डीएफए से और एक कैपेसिटी देखा, मशीन्स विद आउटपुट एज, ये फाइंड एंड रिप्लेस के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखेंगे जो बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एंड दैट प्रॉब्लम इज डिजाइन अ मिली मशीन टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो दो मेथोडोलॉजीज है, पहले दोनों मेथोडोलॉजी देखते हैं, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करना है वो देखेंगे एंड फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, इट्स अ वेरी नाइस एंड जेन्युइन प्रॉब्लम, lot many times this was there in TOC paper as well as you find such kind of problem in GATE examination also with respect to Murmali, right? Okay, so two's complement ढूंढना कैसे है, for example two's complement का मेथड वन क्या है उसका कि find one's complement first and then add 1 to it, right? Okay, find one's complement and add 1 to it. For example, अपने पास अभी है 1 0
1101। तो अभी इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहला इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। सो दिस बिकम 010010, राइट। ओके, सारे वंस को जीरो कर दिया, सारे जीरोस को वंस कर दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना वेरी इजी। प्लस इसमें अभी वन को ऐड करेंगे, +1, एंड आई गेट दिस एज 110010, राइट। ओके, तो ये हुआ इसका व्हाट, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशंस, राइट। ओके, सो यहां पे अगर आप देख रहे हो, so this is what the methodology 1, this is first method. Next is, let me explain method 2, right? And in the beginning only let me tell you कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड 2 को यूज करने वाले हैं। मेथड 2 को, यही प्रॉब्लम आगे चल के एक यूनिट में आएगा, दैट इज ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन से भी हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, पर दोनों के केस में हम लोग मेथड 2 ही यूज करने वाले हैं। पर लेट अस सी लाइक हाउ मेथड 2 वर्क्स, राइट। ओके, सो मेथड 2 में जब भी नंबर इज गिवन टू अस, फॉर एग्जांपल 10100 ऐसा नंबर दिया है, तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम एलएसबी। सो यहां पे व्हाट आई विल डू इज start with LSB, right? Okay, start with LSB. So 10100, so start with LSB and write 0। अगर आपको मिलता है तो राइट इट एज इट इज, एज इट इज उसको लिखना है, राइट। ओके, जब तक आप बैक ट्रैक जा रहे हो, कर रहे हो ऐसे कॉम्बिनेशन, जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता तब तक जो कुछ मिल रहा है वो वैसा ही लिखना है, राइट। ओके, सो 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, राइट। ओके, स्टार्ट विद LSB एंड राइट all zeros and ones as it is till we get first one, till we get first one। तो यहां से शुरू करना है, एंड ट्रेवलिंग कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। सो 001, राइट। ओके, यहां तक सारे कुछ ऐसे लिख दिए, एंड उसके बाद हाँ देन कॉम्प्लीमेंट each bit after that, each bit after that, राइट। ओके, तो उसके बाद आने वाले सारे बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये 0 का होगा 1, ये 1 का होगा 0, एंड दिस बिकम्स द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस गिवन वैल्यू। अभी ये क्रॉस चेक करते हैं मेथड 1 के साथ। सो प्लीज सी 10100 का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कर लो, वंस कॉम्प्लीमेंट बिकम्स 01011 प्लस उसमें 1 ऐड कर दो, एंड 1 + 1 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 1 एज इट इज, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। प्लीज क्रॉस चेक। Are you able to see both the methodology gives you the same answer? Yes. So प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग यूज करेंगे मेथड नंबर 2। सो मेथड नंबर 2 में हम लोगों को हमेशा LSB से शुरू करना पड़ता है। तो जब ये प्रॉब्लम आएगा पेपर में, तो आपको पहला कंस्ट्रेंट लिखना है कि the bits of the number for which the 2's complement has to be calculated will be placed on input tape in a reverse order। मतलब अपने पास तो बिट्स ऐसे है 10100, राइट। ओके, इनपुट टेप ऐसे रहता है एंड इट इज मूविंग इन व्हाट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पर अभी इस कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को मूव करना है व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन, लास्ट बिट टू फर्स्ट बिट, राइट। ओके, LSB टू MSB आई कैन से। सो यहाँ पे पहला कंस्टेंट आप लिखते हो। सो फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फॉर दिस सॉल्यूशन input alphabets are placed on input tape starting from
LSB to MSB, ये इसका कंस्ट्रेंट है। ये इसमें मॉडिफिकेशन आपको पहले लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि आप क्या करना चाहते हो। एंड देन यू सपोज टू राइट दिस मेथड 2 स्टार्ट विद LSB एंड राइट ऑल zeros and ones as it is till you reach to first one, एंड देन उसके बाद आने वाला हर एंटिटी होगा 0 का 1 एंड 1 का 0। उसके बाद आने वाले ईच एंड एवरी बिट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। आई होप कि ये क्रिस्टल क्लियर है मेथोडोलॉजी। अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग डिजाइनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स सी फिर इसका डिजाइनिंग कैसे होगा। सो इस केस में अभी इनपुट सिंबल तो अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड 1 है, राइट। ओके, आउटपुट सिंबल भी अपने पास 0 एंड 1 है, राइट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैं वापस वो एग्जांपल लिख रहा हूं। शुरू करना किस कहां से है? 0 से, राइट। ओके, सो Q0 में अगर हम लोगों को एक, अभी यहां पे 2 कंपार्टमेंट इसके बनते हैं, राइट। ओके, टिल यू गेट द फर्स्ट वन, राइट। ओके, सो स्टार्ट विथ LSB and move left side में movement till we get first one, नहीं क्या, till we get first one। तो यहां से ये मूवमेंट चल रहा है। तो इस केस में जो 0 मिल रहा है उसको 0 को एज इट इज लिखना है, जो 1 मिल रहा है उसको एज इट इज लिखना है। एंड एक बार ये 1 मिला तो उसके बाद वाला सोचना, उसके बाद वाला थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद वाला कॉम्प्लीमेंट ईच बिट, राइट। ओके, तो अपने पास अभी 2 कंपार्टमेंट हो गए इस नंबर के। एक कंपार्टमेंट जो LSB से शुरू करके पहले 1 तक पहुंचता है, राइट। ओके, सो इन दिस केस आई कैन से लाइक Q0 can see 0 before first one, can see 0 before first one, and Q1 can see 1, or you can say can see first one। Do you agree on this? Yes, क्योंकि ये दोनों अभी ये स्टेट काम करेंगे LSB से शुरू करके पहले 1 तक पहुंचने का, एंड उसके बाद 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, पर उसके बाद इन आने वाले zeros and ones के साथ कुछ अलग ऑपरेशंस करने हैं। सो वी नीड अ सेपरेट स्टेट फॉर देम। सो Q2 को लिखते हैं can see 0 after first one, and Q3 can see 1 after first one, right। Okay, अभी अगर आप ध्यान से इसको देखते हो, हाँ, सो थोड़ा सा मैं इसको साइड ट्रैक करता हूँ। आई होप कि ये अभी क्लियर हुआ है, एंड ये यहाँ पे रखा हूँ, राइट। ओके, सो अगर आप इनको ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट 1 मिलने तक का हर 0, तो यहाँ पे आउटपुट हमको क्या मिलेगा? दिस विल प्रोड्यूस द आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये भी पहला 1 भी अपने को आउटपुट देगा व्हाट? 1। पर इसके बाद आने वाला हर 0 के लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए 1, एंड हर 1 के लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए व्हाट? 0। ये इंटरेस्टिंग है, राइट। ओके, सो प्लीज सी नाउ, व्हेन आई एम इन Q0, वहां पे अगर कोई 0 मिलता है, राइट। सो आई विल गो इनटू व्हाट? दिस स्टेट ओनली, एंड वहां पे जैसे ही पहले 1 मिला तो मैं चला Q1 में, राइट। ओके, सो एक बार मैं Q1 में पहुंचा तो वहां से मेरा वापिस आना पॉसिबल नहीं। व्हाई? बिकॉज मुझे पहला 1 मिल चुका है। उसके बाद हम लोग दूसरे कंपार्टमेंट में जाने वाले हैं। उसके बाद आने वाले सारे zeros and ones को हमको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो Q1 से ट्रांजिशन आगे बढ़ेगा, पीछे आ नहीं सकता, एंड वहां से भी आगे वाले स्टेट से यू कैन नॉट मूव टू व्हाट? Q0, राइट। ओके, सो Q1 में आएगा 0, तो हम लोगों को ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि पहले 1 के बाद आने वाला 0 देखता है। हु कैन सी दैट? Q2। सो मैंने यहां पे लिखा Q2, एंड
हु कैन सी दिस 1 Q3, पहले 1 के बाद आने वाला 1 कैन बी सीन बाय Q3, राइट? ओके, सो दिस इज ये 1 एंड देन अभी इसका डीएफए कंप्लीटनेस, इसका डीएफए कंप्लीटनेस, अभी इसका डीएफए कंप्लीटनेस करना है, पर यहां से ट्रांजिशन कभी इधर नहीं जाने वाले, क्योंकि ये जो स्टेट्स है वो पहले 1 को देखने के बाद वाले स्टेट है, राइट? ओके, सो Q2 में आने वाला 0 कहां पे जाएगा? वो ऐसे स्टेट में जाएगा जो कि पहले 1 के बाद आने वाला 0 देख रहा है, राइट? सो यहाँ का 0 विल ट्रांजिट टू इट एंड 1 का ट्रांजिट टू दिस, यहाँ का 0 ट्रांजिट, यहाँ का 1 विल ट्रांजिट टू दिस, यहाँ का 0 विल ट्रांजिट टू दिस। अगर ये आप यहां से आगे डायग्राम देखते हो, यहां से आगे, तो ये आपका 1 डायग्राम, 1 कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन है। आप पिछले कुछ पेजेस टर्न करके अपना पहला प्रॉब्लम मुरमिली का देख लो, Q1, Q2, Q3, ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ये 1 कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन है। एंड उसके पहले सारे जीरोस आउटपुट 0 देंगे, पहला 1 आपको आउटपुट 1 देगा, तो इसको अटैच करना है अभी आउटपुट से। सो मैंने Q0 को आउटपुट दे दिया 0, Q1 को आउटपुट दे दिया 1, पर यहाँ पे 0 मिलता है तो आउटपुट 1, 1 मिलता है तो आउटपुट 0। ये बना अपना सॉल्यूशन फॉर फाइंडिंग आउट 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर, राइट? ओके, तो अभी आप सोचोगे कि सर इसको मिली मशीन में कन्वर्ट करके मिनिमाइजेशन हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट ऑन टू यू, मैं इसका मिनिमाइजेशन आपको करके बताने वाला हूं। सो प्लीज सी, आई होप कि सॉल्यूशन अभी क्लियर है, राइट? तो यहाँ पे इसको आई टेक इट टू दिस, राइट? ओके, सो एंड यहाँ पे what I'll do is this diagram, हाँ ये डायग्राम का अभी मुझे बनाना है, लेट अस से मिली। मिली क्या कहता है? मिली कह रहा है मूर अगर अपने पास है तो स्टेशन वाला एनालॉजी अप्लाई करके मिली बना लेते हैं। चलो, इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट 0 एंजॉय करेंगे, इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट 1 एंजॉय करेंगे, इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट 1 एंजॉय करेंगे, इस पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट 0 एंजॉय करेंगे, राइट? ओके, तो मैंने लिख दिया आउटपुट एंड अभी मुझे चेंज करने हैं इसके अंदर के ये एंटिटीज, इनको यहां से निकालना, राइट? ओके, एंड देन आई गेट दिस एज इट इज Q2। हाँ, अभी इसका टेबल बनाएंगे एंड टेबल से मिनिमाइजेशन का टेक्निक अप्लाई होगा, राइट? ओके, सो टेबुलर फॉर्म, प्लीज हेल्प मी। सो Q0, Q1, Q2 एंड Q3, राइट? ओके, ये ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 एंड 1 के लिए ट्रांजिशंस कैसे है? Q0 में 0, I'll go to Q0, आउटपुट इज 0। Q0 में 1, I'll go to Q1, आउटपुट इज 1, राइट? ओके, सो Q1 में 0, Q1 में 0 आता है तो I'll go to Q2, राइट? ओके, आउटपुट इज 1, I'll go to Q3, output is 0. Q2 में 0, I'll go to Q2, output is 1, I'll go to Q3, output is 0, I'll go to here Q2, output is 1, Q3, output is 0। अगर यहां से ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो तीनों स्टेट्स है, इनका इनपुट ट्रांजिशंस, हाँ मतलब ट्रांजिशन, नेक्स्ट ट्रांजिशन एंड उनके आउटपुट भी एग्जैक्टली सेम है, तो इनको मर्ज कर सकते हैं एक स्टेट के अंदर। सो हम लोग इनका मर्जिंग करेंगे विद द टेबुलर नोटेशन एज, सो दिस इज Q0 एंड Q1 ओनली। जहां जहां पे Q2 Q3 है वहां पे मैं लिखूंगा Q1, दैट्स इट, राइट? ओके, सो 0 एंड 1 के लिए, सो Q0 ऑन 0 गोज टू Q0, आउटपुट इज 0, ऑन 1 इट गोज टू Q1, आउटपुट इज 1, राइट? Q1 ऑन 0 गोज टू Q2, पर अभी Q2 के लिए मुझे लिखना है Q1 ओनली एंड आउटपुट इज 1, एंड Q2 ऑन 1 गोज टू Q3, पर Q3 को कंबाइन किया Q1 के साथ, तो यहाँ पे भी लिखेंगे Q1 एंड आउटपुट इज 0। इसके लिए फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज सी, आई एम इन Q0, अगर 1 मिलता है तो आई एम इन व्हाट? Q1, एंड यहाँ पे इसका 0 विल टेक मी टू दिस, इसका 1 विल टेक मी टू दिस, बट यहाँ पे आने वाला 0 will give me what? 1 as output, and यहाँ पे आने वाला 1
will give me 0 as output. Very interesting one, right? Okay, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पहले 1 से आने पहले वाले सारे जीरोस मुझे आउटपुट देंगे 0, जैसे पहला 1 आता है वो भी मुझे आउटपुट देगा 1, पर उसके बाद आने वाला हर 0 आउटपुट 1, हर 1 आउटपुट 0, पहले 1 के बाद आने वाले सारे एंटिटी 1's कॉम्प्लीमेंट. वेरी ब्यूटीफुल सॉल्यूशन. ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, राइट? एंड दिस वाज आस्क्ड फॉर मेनी अर्लियर क्वेश्चन पेपर. तो ध्यान से सुनना है इसका, ध्यान से पढ़ना भी है इसको. ये कंपार्टमेंट का अगर सॉल्यूशन आपने बना लिया तो यू कुड बी एबल टू मेंशन इट इन अ वेरी नाइस वे. नेक्स्ट थिंग इज, आपको ये सॉल्यूशन ड्रॉ करने से पहले ये नोट जरूर लिखना है. फॉर दिस सॉल्यूशन इनपुट अल्फाबेट्स आर प्लेस्ड ऑन इनपुट टेप इन अ रिवर्स ऑर्डर starting from LSB to MSB. So ये हुए मूर एंड मिली मशीन के all possible combinations, all possible problems, right? Okay. So I hope, I must say that you must have enjoyed मूर मशीन एंड मिली मशीन. एक कोट के साथ डिस्कस करेंगे एंड इस सेशन को वाइंड अप करेंगे. कोट इज, मूर इज एंजॉयिंग द आउटपुट इनसाइड द स्टेट. दूसरा कोट, minimization is possible only with milli machine. It cannot happen with Moore machine. That's it for this session. Keep studying. Thanks a lot for the watching. Thank you very much.